in all kind of interaction. There is no exception. बाद में हम लोग देखेंगे कि there are certain things which are conserved in one kind of interactions while not conserved in other kind of interactions. But till now, whatever we have studied is conserved in all kind of interactions, and so is B. A baryon number is conserved in all kind of interactions. Just for example, if you take the beta decay in last class, the other examples we will take once we complete these conservation laws, right? Then we'll include various kind of examples. So n goes to p plus e minus antineutrino. We had seen in last class that here is lepton, so here should be, and this should be anti-lepton. So if you see here, already we have seen this two, Q and Le. Q is 0, P is 1, for P, Q is 1, for electron, Q is -1, 0, so this is conserved. We have seen for lepton number, this is +1 and this is -1, so this is conserved. So we have seen these things in last class. Now if you see baryon number, a baryon number is for neutron, what will be the baryon number? +1. Right, very good. So this is your +1. For proton, what is baryon number? +1. +1. +1, or we can write simply 1. So for both, baryon number is 1. In LHS, we have just one baryon. So in RHS, now we have one baryon. So there is a guarantee that there should be no other baryons. LHS, total baryon number is 1. In RHS, total baryon number 1. So this is conserved. So if you understand that baryon number has to be conserved, so in this beta decay, there is a guarantee that in RHS, in this part, there should be only one baryon, there is a one lepton, and there is a one anti-lepton. Lepton, there should be an anti-lepton, so that the net lepton number is conserved. ठीक है, यदि इधर और कोई एक बेरियन नंबर होता तो इधर एक और बेरियन आता. So in this way, these conservation law help us to anticipate the what will be the other particles. क्लियर है? जैसे एक और हम लोग ले रहे थे इनसाइड न्यूक्लियस. यस, we had taken the beta, I think plus decade through the conversions of proton into neutron inside nucleus. So if you take this inside nucleus, P goes to N. Now if you see baryon number, here is 1, here is also 1. So there is a guarantee that the other particles, in that case it was E plus, क्योंकि यहाँ चार्ज 1 है तो यहाँ भी चार्ज 1 होना होगा, और ये एंटी लेप्टॉन है तो यहाँ लेप्टॉन होना होगा. तो दोनों का बेरियन नंबर 0 होगा. बाकी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में. ठीक है, तो इसलिए उसमें भी एक ही हमारा क्या बेरियन है दोनों साइड. यदि इधर मेसॉन होता तो इधर फिर बेरियन नहीं होता. मेसॉन के लिए बेरियन नंबर 0 होता है. ठीक है, so this is very simple. So now let's move to the next conservation principle. Next conservation principle is conservation of linear momentum. Conservations of a linear momentum. Again, this is a fundamental principle. Linear momentum should be conserved in, this is conserved in all kind of interactions. Right, so it has to be conserved in all kind of interactions. So how to deal with means, if you see the previous example, we don't check generally linear momentum. Why we don't check?
if you see in RHS, there are 3 particles, right? So sum of linear momentum of this one, sum of linear momentum of this one, sum of linear momentum of this one. It's possible that if we add 3 vectors, each of those vectors are linear momentum of any one of these particles, we'll get the linear momentum equal to this one. Means यदि प्रोटॉन का कुछ भी linear momentum हो, ये तीनों का सम करके उस linear momentum के बराबर हो सकता है. इसको चेक कहाँ पे करते हैं? जैसे एक एनिहिलेशन बताए थे, मान लीजिए कोई पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है. लेट्स से इलेक्ट्रॉन combines with its corresponding anti-particle, which is positron, right? This is electron, this is positron, and this will gives energy. This will be converted into energy. This is called annihilation. एंटी पार्टिकल के समय में बताए होंगे कि जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मैच करता है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. Now this energy has to be emitted in terms of some quanta of energy, right? Some particles. So electrons are involved. So this is electromagnetic interaction. So here we have in the terms of photon. So if you take this one, if initial momentum pi, let's say both are at rest, it's quite possible that both have zero linear momentum. In RHS, linear momentum not equal to zero. Why? Because photon has always intrinsic momentum. Photon at rest is not possible. We find how to find momentum. आप पढ़ेंगे पहले. P equal to E by C से हम लोग निकालते हैं इसका momentum. तो energy हमेशा होगा E by C will give the momentum. So this is forbidden. कभी भी ये संभव नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट करके एक सिंगल फोटोन. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन हैव inhalations by emitting 2 photons, or we can have 3 photons. अब क्या हो सकता है कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम मिलके कैंसिल हो सकता है. नेट कैन बी बैलेंस. 3 भी मिलके 0 हो सकता है, राइट? सो by inhalation we'll have always more than 1 photon, and this is on the basis of principle of conservation of momentum, right? तो इसको ऐसे ही चेक करेंगे. अदरवाइज इफ मोमेंटम इज गिवन देन ईच पार्टिकल्स का, तो फिर आपको उसके बेसिस पे जो वेक्टर सम करते हैं, जो क्लास 11th 12th में पढ़े, विद द सम ऑफ वेक्टर्स, दोनों साइड का मोमेंटम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. क्लियर है? बोलिए. एक फोटॉन्स में ना इमिट होके 2 फोटॉन्स या 3 फोटॉन्स में इमिट होगा, सच दैट द टोटल लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व. है ना? यहाँ पे हम लोग ऐड करके चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि इधर 0 हो, है इधर 0 है. यहाँ पे इसमें क्या है कि संभव है कि दोनों साइड 0 हो सकता है, इसमें दोनों साइड भी 0 हो सकता है. ठीक है? ओके, कोई रिप्लाई करिए. Yes, sir. है ना? So now let's move to the next one, which is conservations of isospin. I think we had studied 2 things. Isospin, let me write here, component of isospin. Component of isospin. Let me write here I3. And this is your I3, and this is your I. Right? So now we'll read about conservations of I and I3. ठीक है, इसको साथ में ही करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे पहले जब हम लोग पढ़े थे आइसोस्पिन. सो वंस यू फाइंड आइसोस्पिन, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I3. सो बोथ आर रिलेटेड, राइट? इफ यू रिमेंबर, just for
रिवीजन इफ यू रिमेम्बर न्यूक्लियन, है ना, न्यूक्लियन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो न्यूक्लियन में क्या क्या था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आई कितना होता था, I3 कितना होता था, तो किसी को याद है बताइए? Sir, I is half for both. I is half, right, and I3 Sir, plus half and minus half. minus half. right, very good. So we have seen how to calculate the value of an I and I3. So now we have to talk about whether I is conserved or I3 is conserved, and how to check I is conserved or not, or I3 is conserved or not, right? So let's first talk about I. आप लोग ये क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, कम्यूटेटर पढ़े हैं? कम्यूटेटर ऑपरेटर ऐसा जैसे Yes, sir. है ना? So if you find this h comma I mean commutator of h and I, this will be 0 in जो भी आप linear vector space ले रहे हैं। So इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैमिल्टनियन है that commute with isospin. We are not proving it. In how to check, जैसे linear momentum, energy, ये सब का, और जो बेरियन नंबर है, लेप्टॉन नंबर है, दे आर सम काइंड ऑफ चार्ज, आपको बताए थे, बेरियोनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेप्टोनिक चार्ज, right? So we have studied the logic behind why those should be conserved. But if you talk about isospin, I3, straightness numbers, so these are the new quantities. So how to decide whether the particular thing will be conserved or not? So if the whatever the quantity is commute with the corresponding Hamiltonian of that state, then that quantity will be a constant of that interactions, means that will be conserved. आप ये एक क्लासिकल मैकेनिक्स होता था जो अभी तक आप लोग का हुआ नहीं है ये एनईपी में, वो क्लासिकल डायनेमिक्स में जो लोग 6M के बाद पढ़ेंगे वो आएगा, तो उसमें भी जैसे ये क्वांटम में नहीं, क्लासिकल में भी है कि यदि कम्यूटेटर का वहाँ कुछ दूसरा है क्या, पॉइसन ब्रैकेट या कुछ, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर या मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पर उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या साइक्लिक क्वांटिटीज बोलते हैं। उसका मतलब वही है कि जो भी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा वो चेंज नहीं करेगा उस इंटरेक्शंस में। समझ में आ रही बात? वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ द, यदि मोशन रहेगा तो मोशन, यदि इंटरेक्शंस रहा तो इंटरेक्शंस। सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स, ठीक है? सो if in a strong interaction H commute with the I, then I will be conserved, right? So this I commute with isospin in two kind of interaction, in strong interaction and in electromagnetic interaction, ठीक है? So strong interactions and electromagnetic interactions में ये commute होता है। just wait. या इसको फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सो बताना। वही आई वाज जस्ट चेकिंग, एक्चुअली दैट वाज मिक्स्ड विथ I3, हम I का बात कर रहे हैं अभी, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको, ठीक है? सो H commute with isospin I in a strong interactions, इसका मतलब क्या हुआ कि I is conserved in strong interactions, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवन I3 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस का पहले बात कर ले रहे हैं। H I3 is 0 in electromagnetic interaction, ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब I3 is conserved in electromagnetic interaction. इसका मतलब हुआ कि I और I3, this I3 both are conserved in a strong interaction. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में दोनों कम्यूट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इस दोनों में करेगा H, लेट मी राइट हियर, एंड H, I3. ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में कंजर्व्ड रहेगा I3 एंड I. ठीक है, I3 H के साथ जीरो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में भी, लेकिन दिस वन इज नॉट जीरो. I3 is not equal to 0 in a strong interaction. इसका कारण क्या है कि I3 represents different charge states. Wait. Actually सब mix हो गया, so let me repeat from here. ठीक है, I and I3, I is half for proton neutron, I3 is plus half minus half. इसमें क्या एक लॉजिक क्या है सो समझिए. ये जो I3 है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट चार्ज स्टेट्स. तो चार्ज स्टेट्स अलग अलग है. प्रोटॉन का चार्ज इज प्लस ई, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है. तो एनीथिंग विच इज चार्ज डिपेंडेंट, कोई भी ऐसा इंटरेक्शन जो चार्ज डिपेंडेंट हो, और वी नो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज चार्ज डिपेंडेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, एंड द सोर्स ऑफ दैट फील्ड इज चार्ज, राइट? सो I3, if I3 is different, then the interactions will be different because the source is different. इस समझ में आ रही बात कि I3 अलग अलग है तो चार्ज अलग अलग होगा. ठीक है, तो यदि हैमिल्टनियन जैसे मान लीजिए स्टेट हमारा H और I जो ले रहे हैं हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को चार्ज से कोई लेना देना नहीं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज ओके. ठीक है, तो I and I3 both will be conserved in a strong interactions. Clear है ये? ठीक है, ये पार्ट. Now if you see in electromagnetic interactions, H and I3 equal to 0, ये भी ओके है. क्यों ओके है? क्योंकि यदि I3 आप फिक्स कर दिए, if you are talking about I3 of proton, right? So there is only one charge state, so no problem. This will be conserved in electromagnetic interactions I3. ठीक है, तो ये जो चीज हम यहाँ बता रहे थे ये रिपीट हो रहा था. मतलब वी शुड गो फॉर व्हाट अबाउट I3 और I in electromagnetic interaction instead of the other thing. फिर से देखिए, I and I3 both are conserved in a strong interaction. This one, दोनों strong interactions में conserved होगा, because strong interactions has nothing to do with charge. In electromagnetic interactions, I3 is conserved, no problem. But if you talk about H comma I in strong interactions, yeah, this is not zero always. There is no guarantee. Not equal to 0 means for all states ये जीरो नहीं होगा. कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अब जो हैमिल्टनियन होगा that will depends upon charge, and this I will have the different charge states. Are you getting this point? Yes. Sir, can you repeat it once? हाँ, I am repeating it. इसीलिए इसको थोड़ा सा फिर से सब लोग देख लीजिए. फिर से शुरू से रिपीट कर रहे हैं. There is no hurry. So if you see I and I3, right? When we talk about I3,
that represents a particular member of that multiplates, a particular multiplate. ठीक है, इसमें दो multiplates हैं, proton and neutron. Multiplicity is 2. So when we say I3, any value of I3, that will have either positive charge or negative charge or neutral charge. So there is a fixed charge. But when you talk about I equal to half, so that may have a particle with different charges. And isospin is given for all members of that family. So that will belongs to the different charge states. So when you talk about strong interactions, in a strong interactions has nothing to do with the charge of the particles. है ना, पढ़ेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उससे कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिस्टेंस आर का फैक्टर होता है, ठीक है, और ऑफ कोर्स द अदर थिंग्स विल बी देयर, बट देयर इज नो चार्ज. सो I and I3 both commute with the H, irrespective of whether the particle is positively charged, negatively charged, or neutral. So that will commute, and hence I and I3 are the constant of that interaction. So that will be conserved. LHS और RHS में दोनों का वैल्यू सेम होगा. हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, एक बार हम लोग तीनों कर लेंगे, I3 और S, क्योंकि वो जो गिलेमेन-निजिमोव फॉर्मूला पढ़े थे तो उसमें देखते होंगे RHS में I3S और बेरियन नंबर आता था Q LHS में, तो Q और B पढ़ चुके हैं, तो जब तक हम लोग I3 और S नहीं करेंगे तब तक हम लोग एग्जांपल्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है. सो ये कंजर्व्ड होगा, आई थिंक दैट इज ओके नाउ. ओके है ये, I3 और I इज कंजर्व्ड इन अ स्ट्रांग इंटरेक्शन. क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? Yes, sir. But when we come to electromagnetic interaction, this part is for not one, in the entire part. Wait, this part is for, I'm writing here, EM interaction, electromagnetic interaction. In electromagnetic interaction, I3 will commute with the H, क्योंकि whenever we write I3, the charge is fixed. मतलब I3 यदि हाफ ले लिए तो प्रोटॉन होगा इस केस में, और I3 माइनस हाफ ले लिए तो न्यूट्रॉन होगा. So there is no problem. I3 is conserved. But strong interactions में जब हम, अच्छा यार, स्ट्रॉन्ग का तो बात हम लोग पहले कर चुके हैं, इसीलिए let me write this again. We are continuing with electromagnetic interactions. So strong interactions से मिक्स नहीं कर रहे. ये विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रहा है कि और बड़ा करें? Sir, it is visible. हाँ, ठीक है. So this is electromagnetic interactions. So I3 is conserved. Now if you take H comma I, this is not equal to 0 always. This is, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Always in electromagnetic interactions. इसका ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि now this H will be the function of, this is function of charge, electric charge. If let me write clearly. So this is function of charge, और ये I जो है same for all charges. I हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये सबके लिए अलग अलग होगा. तो ये किसी के साथ 0 होगा या किसी के साथ 0 नहीं होगा. इसका मतलब क्या हो गया? ऑफ कोर्स वी आर नॉट डेराइविंग दिस, आपको लॉजिक बता रहे हैं कि ये चार्ज डिपेंडेंट हो गया, ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया, और ये चार्ज डिपेंडेंट हो गया. तो दो अलग अलग तरह का क्वांटिटी कम्यूट नहीं करता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होना चाहिए. तो इसका मतलब हो गया कि I is not conserved for electromagnetic interaction. जो हम मिस्टेक से उस समय से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस लिख दे रहे थे कंटिन्यूएशंस.
कंफ्यूजन हो रहा था, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में दोनों कंजर्व्ड होगा NI3, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट एवरीथिंग इज कंजर्व्ड इन नॉट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में हर एक चीज कंजर्व्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में I3 कंजर्व्ड होगा बट I वोंट बी कंजर्व्ड। क्लियर है? ठीक है, तो समरी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन I3 is conserved but I is not conserved। I जरूरी नहीं है, I को हम लोग चेक नहीं करें, कंजर्व। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन? I3। क्लियर है ये? बोलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट होगा? I3। we'll check whether I3 is conserved or not। ठीक है, now let's talk about for अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम लोग डिस्कस कर सकते थे, फॉर वीक इंटरेक्शंस। एक्चुअली आई वाज गोइंग टू स्ट्रेंजनेस नंबर, वीक इंटरेक्शंस का बात नहीं किया हम लोग। सो फॉर वीक इंटरेक्शंस I and I3 is not conserved। In fact वीक इंटरेक्शंस के बारे में बता पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वीक, है ना। वो एक पर्टिकुलर जो रेंज होता है उसी में होता है ना। तो उसके बाहर वीक में बहुत सारी चीजें कंजर्व नहीं रहती है। सो इज I3। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक का जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग में सारा कुछ कंजर्व होगा, वीक में इलेक्ट्रॉन नंबर, चार्ज, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सारे कंजर्व होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में कंडीशंस है कि जो चार्ज डिपेंडेंट, जैसे I इज नॉट कंजर्व्ड, I3 इज कंजर्व्ड, वैसे ही कुछ स्पिन स्ट्रेंजनेस नंबर वाला में भी आएगा। So now let's move to the conservations of a strangeness number। हम लोग इस सब का एग्जांपल लेंगे once we complete these parts, because we will have to check for I3 at the same time we will have to also check for S। So both are related, I3 and S। जो Gilman-Izuma फॉर्मूला में आप RHS में देखते होंगे तो I3 और S आता था, या if you remember the weight diagram, तो X coordinate I3 था तो Y coordinate हमारा हाइपर चार्ज या S है ना। तो both are related। ठीक है, सो दोनों लेने के बाद ही हम लोग उसका एग्जांपल्स लेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशंस ऑफ स्ट्रेंजनेस नंबर। स्ट्रेंजनेस नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, कौन सा लेटर से? कैपिटल एस। कैपिटल एस, राइट, वेरी गुड। सो एंड द definition of S, S is defined by कौन सा फॉर्मूला होता था? बोलिए कोई, Gilman-Izuma फॉर्मूला, नाम क्या था, एक्सप्रेशन बताइए। So capital Q equals to E into 1 plus I sorry, three. I plus I3 I3 plus B plus S by 2। राइट। कौन बताए B plus S by 2? हम आवाज से नहीं पहचान पाए, कौन है? सचिन कुमार। ओके, वेरी गुड। इस B plus S को हम लोग हाइपर चार्ज भी बोलते थे, याद है? दिस B Yes, plus S was also called hyper charge। So why I am talking about this formula right now? Now we'll find from here whether S will be conserved or not। ठीक है, so Q is your electric charge। So if you see Q and B, this Q and B, these are conserved in all kind of interaction। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। The charges are electronic charges and baryonic charges are conserved in all kind of interaction। ये जो तीसरा आ रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6010 कूलम। नाउ I3, if you see I3, this is conserved in, we have just studied, this is conserved in strong and electromagnetic interaction।
ठीक है. So if you see here, say this is your equation 1, this galvanism of formula. So this is always conserved, this is always conserved, right? And I3 is not always conserved. It is conserved in a strong and electromagnetic interaction. So when I3 is a conserved, जब I3 भी कंजर्व होगा, ये तो हमेशा कंजर्व्ड है ही, तो S को भी कंजर्व होना होगा, क्योंकि यदि केवल S चेंज कर जाएगा तो फिर Q चेंज हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहेगा. आप समझ रहे हैं? उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, टेक अ टाइम. उस फॉर्मूला को देखिए, Q है इधर, I3 है, B है, S है. Q और B पे देयर इज नो क्वेश्चन, ये हमेशा कंजर्व है. तो इसका मतलब हुआ कि जब भी I3 कंजर्व होगा, S को भी कंजर्व होना होगा, और I3 चेंज करेगा तो S को भी चेंज होना होगा, कि सच दैट चेंज इन I3 एंड चेंज इन S कैंसिल ईच अदर, है ना. I3 और S का चेंज मिलके क्या होगा कि चार्ज हमारा कंजर्व रहे. ऐसा समझ में आ रही बात? वेरिएबल इसमें क्या है हमारा, I3 और S ही, राइट, जो चेंज कर सकता है. सो क्लियर है ये? यस और नो बोलिए, समझ में आ रहा है? Q भी हमेशा कंजर्व है, तो S I3 के अनुसार जाएगा. I3 जब कंजर्व होगा तो S भी कंजर्व होगा, ताकि चेंज, ये फॉर्मूला चेंज ना करे. और जब I3 चेंज करेगा तो S भी चेंज करेगा. ठीक है, ये Yes. एक है ना. Yes, sir. I3 is conserved in a strong and electromagnetic interactions. So from equation 1, what we can write here, S is also conserved. In strong and electromagnetic interaction. Gravitational interactions का तो हम लोग एग्जांपल्स लेते ही नहीं. Lot of that's why we are focusing on three things: strong electromagnetic interactions and weak interaction. Gravitational interactions के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता, या उस रेंज में हम लोग नहीं ले रहे हैं एग्जांपल्स. So S is conserved in a strong and electromagnetic interaction. इसका मतलब हुआ कि in weak interaction, वहां पे हम लोग देखे थे कि I3 is not conserved, ठीक है. So S is not conserved, like I3. So I'm writing that point, that word, ठीक है. So in weak interactions, S won't be conserved like I3. क्लियर है? एक चीज और जो पहले भी बताए होंगे जब स्ट्रेंजनेस नंबर बताए होंगे, कि if S and I3 changes in an interaction, जैसे कंजर्व नहीं है तो चेंज कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि चेंज करेगा, लेकिन यदि वो चेंज करता है तो दिस वन इज अलाउड. इसका सिलेक्शन रूल होता है, तो उसका डेरिवेशंस नहीं करेंगे हम लोग. तो जो चेंज इन S है वो मैक्सिमम 1 अलाउड होगा, चेंज इन I3 है वो 1 अलाउड होगा, है ना. दिस इज अलाउड, मैक्स मतलब 0 भी हो सकता है. So maximum we can have 1. Delta S equal to plus minus 2 or higher values plus minus 3 not allowed. ऐसा कहीं पर होगा तो forbidden होगा. Similarly, delta I3 equal to plus minus 2 plus minus 3 not allowed. तो जहां भी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा देयर विल बी नो चेंज. वीक में चेंज हो सकता है, लेकिन जो चेंज होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल्स ले रहे हैं जो हम लोग शायद पहले स्ट्रेंजनेस नंबर के समय किए थे, कि ओमेगा माइनस डिकेज टू लैम्डा 0 प्लस के माइनस. सो let's check about a strangeness number and I3. Let's first check about a strangeness number. What is the strangeness number of omega minus 1?
बताइए, याद करिए वो टेबल जो वेट डायग्राम था उसमें ओमेगा माइनस कहाँ पे आता था? कभी भी भूल जाए तो वहीं से निकाल लीजिए। सर -3। -3 इज राइट, वेरी गुड। कैसे याद था आपको? यानी तो जैसे आप चाहें तो वो जो टेबल था हम लोगों का ये वाला, रिमेंबर दिस इज I3 एंड दिस वाज हाइपर चार्ज B प्लस S। तो यहाँ एक 1 होता था, वहाँ 0, और यहाँ पर ओमेगा माइनस आता था। ये 0 हो गया, ये -1, ये -2। यू रिमेंबर दैट? तो y का जो वैल्यू हो गया वो -2 हो गया। तो B प्लस S इज -2, so S is -2 minus B, तो दिस इज -2 -1 -3। मतलब वो देख, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है 1 0 -1। यहाँ पे काई होता था, यहाँ पर सिग्मा होता था, यहाँ डेल्टा प्लस फैमिली आता था। तो इफ रिमेंबर ये सबसे नीचे आता था, तो वेट डायग्राम याद रखने से वहाँ -2 हुआ y, तो b क्या हो गया हमारा -3। लेमडा 0 के लिए कितना होता था स्ट्रेंजनेस नंबर? -1। -1। वो सेंटर पे यहाँ पे आता था, याद है उस वो वाला जो डायग्राम? तो -1 आया, यानी कि -1, हाँ यहाँ 0 हो गया, तो B plus S is 0, so S should be -B, so -1। And carbons is meson। कार्बन्स मेसन्स होता था, तो कार्बन्स का कितना होता है याद करिए? K प्लस K0 ऊपर में हो गया, लेट मी राइट हियर, ऐसा आता था उसका टेबल। आप यहाँ से हमेशा निकाल सकते हैं K प्लस K0, यहाँ पर K माइनस आता था, यहाँ K0 बाद। तो इसमें तो y जो B प्लस S, तो y जो है वही S है, B 0 होता है इसका, ठीक है? तो यहाँ 1 0 -1, याद है ये? यहाँ पाइओन्स होता था। आपको बोले थे वेट डायग्राम याद रखना होगा, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों क्योंकि इधर छुट्टी थी, कोई बात नहीं। वेट डायग्राम को आप देखिएगा तो रिकॉल कर लीजिएगा। ये क्लियर है कि K माइनस के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर क्या होगा? -1। यस Yes, sir. है ना? सो नाउ इफ यू सी ओमेगा माइनस लेमडा 0 K माइनस, तो S क्या हो गया? -3 -1 -1। तो इसका मतलब हो गया कि जो डेल्टा S है ये सम करेंगे, इधर डेल्टा S टोटल कितना हो गया? टोटल S टोटल हो गया -2 टोटल, और इधर -3, तो चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो चेंज इज +1। इसमें आप +1 जोड़ेंगे तो वी विल गेट द -2। तो दिस इज अलाउड, अलाउड है, लेकिन किसके थ्रू अलाउड है? कौन सा इंटरेक्शन होगा? अलाउड थ्रू, बोलिए, अलाउड थ्रू विच इंटरेक्शन? स्ट्रेंजनेस नंबर चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा इंटरेक्शन होगा? या प्लीज आंसर। अभी पढ़े ना ऐसा हम लोग कि S and I3 इफ S and I3 S, क्या बोले आंसर? कोई बोल रहे थे आंसर, बोलिए, ठीक से नहीं आया। वीक इंटरेक्शन। यस, वेरी गुड। वीक इंटरेक्शंस में S इज नॉट कंजर्व्ड लाइक I3। तो यदि किसी इंटरेक्शंस में, जैसा हम आपको बताया कि इंटरेक्शंस हो रहा है, हम चेक करने के लिए भी नहीं दिए थे, वैसा भी क्वेश्चन करेंगे तो चेक करने के लिए दिए कि हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है स्ट्रेंजनेस नंबर के बेसिस पे। तो स्ट्रेंजनेस नंबर चेंज कर रहा है +1 से, इसका मतलब हुआ कि इट इज अलाउड थ्रू वीक इंटरेक्शन। यदि ये +2 हो जाता तो नॉट अलाउड थ्रू एनी इंटरेक्शन, और 0 होता तो फिर स्ट्रॉन्ग से भी हो सकता था। आप देखिए इसमें हार्ड्रॉन्स है केवल, तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन स्ट्रेंजनेस नंबर चूंकि चेंज कर जा रहा है, सो दिस विल अकर थ्रू वीक इंटरेक्शंस। बहुत बार हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कैसा इंटरेक्शंस है, तो हम लोग उस समय डेल्टा एस से सीखेंगे। सबको एक साथ करेंगे तो आपको बाकी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपको इसमें सीखना है वो क्या सीखना है कि इफ डेल्टा एस इज चेंजिंग एंड इट इज चेंजिंग मैक्सिमम बाय +1 और -1,
है ना, जैसे यहाँ -3 था, इधर -4 भी टोटल हो जाता तो भी अलाउड होता, तो चेंज -1 होता, -3 से -4। ठीक है, तो +1 या -1 से चेंज करें तो अलाउड होगा, और अलाउड थ्रू वीक इंटरेक्शन। ठीक है, इट्स 8:29 ऑलरेडी, तो आपका नेक्स्ट क्लास होगा अभी, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रेंजेस्ट नंबर्स और एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर देखेंगे एक और चीज हम लोग पैरिटी, और उसके बाद फिर हम लोग सबको मिक्स करके, मतलब जितना कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़े हैं वो सारा कुछ कैसे चेक करें, कैसे उसे डिसाइड करें, वैसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज Yes, sir. okay, so now you may leave and you can join your next class. Thank you, sir. Thank you, sir.